my warm welcomes to all present here for the celebration of the annual conference of YCT 2022 with a big round of applause. It has become a regular aspect and a part of Shulin University. First and foremost, my duty on behalf of YCT is to welcome you all today for this great event. We are honored to have with us uh, Swami Samaranand Giriji, Swami Brahmamurthy, Mr. Arvind Singh, and Mr. Sushin Sir. Now I would call Vasundhara to lead us for the Saraswati song, and I would request all the dignitaries for the lighting of the lamp. Please, I request all to stand up for the lamp lighting. Yes, sir. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Namaha Gajananam Bhutaganaadisevitam Kapita Jambufala Sarabhakshitam Umasutam Sokavinasa Karanam Namami Vigneshwara Padapankajam Namami Vigneshwara Padapankajam Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Ramanama Paranane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Ramanama Paranane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Ramanama Paranane. Now, I would request Dr. Supriya ma'am to welcome and introduce our honorable guest. Good morning, everyone. A very warm welcome to each one of you. Our respected registrar sir, Professor Sunil Puri sir, Professor S.S. Chandel sir, Professor Tejnath Dhar sir, HOS of Ancient Indian Wisdom and Yogic Science, Dr. Subodh sir, Dr. Mala Tripathi sir, ma'am, Dr. Rohit sir, and all Honorable Chancellor sir, Professor P.K. Khosla, privilege for all of us to have among us our guest, eminent speakers, and among us our guest, eminent speakers, and of course, great personalities, Swami Brahmamurthy Yog Tirth Ji, Mr. Arvind Singh, sir, Professor Sushil Dubey, sir. We welcome you, sir. To begin the session, I would like to request our Honorable Chancellor, sir, to please welcome and facilitate our guest,
Swami Brahmamurthy Yogtirth Ji. Thank you, sir. We are privileged to have among us Mr. Alvinder Singh sir from Mohali, a great entrepreneur and businessman. I would like to request our chairman, Sri Vivek Atre sir, to please welcome and facilitate our guest. Thank you so much, sir. We are highly obliged to have among us Dr. Sushin Dubey from Nalanda Vishwavidyalaya, Bihar. I would like to request our HOS of Ancient Indian Wisdom and Yogic Science, Dr. Subodh sir, to please welcome and facilitate our guest. Request our HOS of Ancient Indian Wisdom and Yogic Science, Dr. Subodh sir, to please welcome and facilitate our guest. Thank you, sir. Now I would like to request our Chancellor, sir, for delivering a welcome address. पूजनीय स्वामी ब्रह्ममूर्ति योगतीर्थ जी, उनके साथ आए हुए दूसरे सन्यासी, आज के टू डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स, अरविंदर सिंह जी तथा सुषम दुबे, प्रोफेसर सुषम दुबे, इस थियोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर, करता धरता एवरीथिंग, डॉक्टर विवेक अत्रे जी, और students, teachers, and everyone present here. I find Dr. Puri, Dr. Chandel, Subodh, and all others. ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि स्वामी जी के चरण विश्वविद्यालय में इस वर्ष पढ़े। पहले भी स्वामी जी यहाँ आ चुके हैं। मैं स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुआ। 3-4 बार मुझे मौका भी मिला। स्वामी जी को देखने से एक वाइब्रेशन आती है, वो एक मैं जो समझता हूँ कि ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा है वो चमकती है। और इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में आकर जो इस थियोलॉजी सेंटर के प्रोग्राम का इनॉग्रेशन का इस वर्ष का जो प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए हम इनके धन्यवाद दिए। मैंने जो जीवन में देखा कि आज ही मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हमारी ह्यूमन की एवोल्यूशन होती है माइंड की। द मैसेज ऑफ द प्रिमिटिव मैन, उसको सोल का तो पता था, कुछ निकल जाता है तो खत्म हो जाता है, बट उसका अगर सिर दर्द भी होता था, उसको ये इंप्रेशन था कि सोल इज लॉस्ट।
तो वो डॉक्टर के पास उनके उस वक्त का जो भी मेडिसिन पर्सन होगा वो उसके बाद जाता था, कहता था मेरी सोल को वापस ला दो, मेरे सिर में दर्द है। वो भी जंगल में जाता था, ही विल ब्रिंग समथिंग, सम मेडिसिनल प्लांट्स में भी उनके माथे पे लगाता था। द पर्सन, द प्रिमिटिव मैन वाज थिंकिंग कि सोल वापस आ गई। मतलब लुक how the evolution of the soul has taken place, the man intelligence has taken place. आज हमें ये स्टेटमेंट भी बड़ी विचित्र लगती है कि ऐसा भी होता होगा, आगे को क्या होगा। आज हमारे देश में अध्यात्मिकता की चर्चा है, लोग ध्यान लगाते हैं। This is also evolution. When I was growing, I was not knowing about meditation or other things. I'm 41, ना मेरी माँ ने मुझे कभी बताया, ना उनको शायद पता होगा कि मेडिटेशन भी कोई चीज होती है। पर आज अगर हम देखें, करें चाहे ना करें, everybody knows, yes, there is body, there is mind for thinking, and there is soul also. The development of the three units is very, very important to be successful and to be called as a human being. भविष्य में क्या होगा और होगा, अलग अलग तरह के तरीके हैं सॉल्व करने के। जिस संस्था को मैं संबंध रखता हूँ वहां इस क्रिया योग की चर्चा होती है। मैं भी up to the age of say 54, I was not knowing all these things. मैंने अचानक मेरे हाथ में किताब आई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। मैंने जब उस पुस्तक को खोला, ऐसे ही मैंने एक चैप्टर को पढ़ने लग गया। अचानक मेरे हाथ में किताब आई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। मैंने जब उस पुस्तक को खोला, ऐसे ही मैंने एक चैप्टर को पढ़ने लग गया विवेकानंद का, कि स्वामी शिकागो में ही इज ब्रिस्कली वॉकिंग, और पीछे एक अमेरिकन बॉय विद हिज मदर वर आल्सो। शिकागो में ही इज ब्रिस्कली वॉकिंग, और पीछे एक अमेरिकन बॉय विद हिज मदर वर आल्सो गोइंग ऑन द रोड। तो गोइंग ऑन द रोड, तो उस लड़के ने अपनी माँ को मत कहा, मदर दिस इज द मॉन्क हु सेव्ड मी व्हेन आई वाज ड्राउनिंग। वो 9 साल का बच्चा। तो the boy and the mother also went into the hall where Swamiji was to deliver a talk. टॉक के बाद वो भी आगे स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने उस बच्चे को क्या कहा, देखते ही, माय डियर बॉय यू शुड बी अवेयर ऑफ वाटर। फिर वो बच्चा तो एक अलग प्रवृत्ति का होगा, वो उनके पैरों को हाथ, अमेरिकन बॉय पैरों को टच करने लगा, कहता नो नो आई एम नॉट योर गुरु, ही रेड हिज माइंड, योर गुरु इज बोर्न इन इंडिया, वन डे ही विल कम एंड ही विल गिव यू अ सिल्वर कप। और गुरु कौन थे उसके, परमहंस योगानंद। He was born in India, born in Gorakhpur, brought up there. At the age of 25, he goes to America and stays there till his death, excepting for 15 months he comes to India. जब इंडिया में स्वामी जी आए योगानंदा जी, तो उन्होंने अपने जो अमेरिका के, क्योंकि उनको स्वामी योगानंदा को काम मिला था ऊपर से गुरुओं से कि he is to spread the message of yoga meditation in the Western world. वो 32 वर्ष वहां रहे अमेरिका में till his death। और अब अपने जब 1935 में इंडिया में आए, 36 को वापस गए, अपने प्राइम डिसाइपल्स के लिए कुछ गिफ्ट लेकर गए। वो जो लड़का था, अब वो बड़ा हो गया था, वो भी स्वामी जी का फॉलोअर था, शिष्य था, उसको मिला सिल्वर कप। मैंने सोचा यार ये कैसी साइंस है, कहाँ योगानंदा, कहाँ ये वो, इसको भी कुछ हाथ लगाना चाहिए।
तो मैं उस रास्ते पे चल पड़ा एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ। नहीं तो हो सकता था कि मुझे पता ही नहीं लगता सारी ज़िंदगी ऐसे बीत जाती। सो द ओपनिंग ऑफ द थियोलॉजी सेंटर इज विद दैट माय बैकग्राउंड कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे विद्यार्थियों को, टीचर्स को तीसरे अंश का भी जीवन का अंश है द सोल, उसके बारे में भी कुछ पता लगना चाहिए। उसी बैकग्राउंड माइंड के होते हुए सेट अप ए theology center in the university. Before that, in education, we incorporated yoga as a degree program at bachelor's level, master's level, and the doctoral level. तो वो तो पढ़ाई लिखाई की बातें हैं। हाँ, उन्होंने तो सब कुछ बताना, हाउ द योगा हैज इवॉल्व्ड, हाउ दिस थिंग हैज बीन डन, ऑल दैट, किसी ने क्या कहा, दैट इज देयर साइंस। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे आप योगिक साइंस पढ़ते हैं, बट स्टिल जो प्रैक्टिकल बात है वो माध्यम से डिफरेंट रिलीजन कैसे सोचते हैं योग को, वेयर इट हैज इवॉल्व्ड, व्हाट इज एंशिएंट इंडियन विजडम एंड हाउ दिस कैन बी असिमिलेटेड। हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी के नालंदा से, नॉट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी तो 1192 में डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके रेमिनेंट्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट ऑन द रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू सेटअप। तो वहाँ से हमारे साथी आए हुए हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे, स्वामी जी के विचारों को भी हम सुनेंगे। एंड आई फील the for youngsters, those who are studying, that is a different matter. But even in your life, body, mind and soul, I consider myself lucky that I have known it. थोड़ा बहुत करते हैं तो अपना अच्छा लगता है। मैं तो इसी स्टेज में कह सकता हूँ, आई एम जस्ट ए नर्सरी स्टूडेंट, शायद नर्सरी स्टूडेंट बनकर ही चला जाऊंगा, मे बी डिग्री अगले जन्म में होगी, वो होनी जरूर है, ये नहीं हो सकता ना हो। अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ द सोल इज टू बिकम वन विद हिम H is capital. So we are thankful to our great speakers और खास तौर पर स्वामी जी जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और हम हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir. We are highly obliged to listen to you, sir, and we are very thankful for your highly inspirational and motivational word. Now, moving forward, now I would like to introduce our second edition of the Divine Quest, an annual publication of the Yogananda Center for Theology. The Divine Quest endeavor to reflect all significant activities of the Yogananda Center for Theology, including the invaluable words of eminent professors and spiritual masters from different universities and spiritual organizations on various topics related to ancient Indian wisdoms and science of spirituality. To compile all these works, I would like to express my gratitude and my sincere regards to Chancellor Sir, Shulini University, and patron of YCT, Professor P.K. Khosla, Vice Chancellor Professor Atul Khosla, and Chairman of YCT, Sri Vivek Atre, for their continuous support and appreciations. A word of special thanks goes to all the associated members of Yogananda Center for Theology, Faculty of Biological Science, Mr. Saurabh Agarwal from Engineering Science, Dr. Lalit Sarma from the Department of Pharmacy, and of course our students coordinators, Mr. Vishal, Mr. Vaibhav, and of course our students coordinators, Mr. Vishal, Mr. Vaibhav, and Ms. Kavita for their sincere contribution towards this publication in various ways. My heartiest congratulations to all academicians and scholars whose articles have been the part of this annual magazine. Now, I would like to request our Chancellor, sir, our Chairman, sir, and our guest for the opening of this book.
Thank you, sir. Moving forward, I would like to begin the session with Swami Yog Tirth Maharaj Ji. But prior to this, I would like to say a few words on the behalf of Swamiji. However, the limited words of introduction will seem very short in front of these great personalities and their invaluable words. Swami Brahmamurti Yog Tirth Ji, he is founder and chairman of Dhyan Yog Ashram and Ayurveda Research Center, Kathni, Solan. He has specialization in both Antar Yoga and Bahir Yoga and various Ashtanga Yoga practices of Maharshi Patanjali. He has done silence meditation for many years in the center of Gangotri and Tehri, Uttarakhand. He has been the author of several books like Ashtanga Yoga, Samadhi Yoga, Brahmacharya Darshan, and he also involved in several social activities and a owner of medicinal plant nursery. Over to you, Swamiji. I would like to request you to please. ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मन थोड़ा हम अतीत की कुछ आध्यात्मिक जीवन से संबंधित जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, अध्यात्म क्या है, थोड़ा हम पीछे लौट जाते हैं। क्योंकि आप विज्ञान के छात्र हो तो आपको बताया जाता है कि विज्ञान के फाउंडर्स कौन हैं। गैलीलियो आया है, न्यूटन आया, डार्विन आया, आइंस्टीन आया। हाँ, डार्विन, बहुत सारे लोगों का आपके जीवन में समावेश है, लेकिन ये भारत का अध्यात्म, इसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इतना बड़ा जो पूरे ब्रह्मांड में विज्ञान अध्यात्म का अतीत से अब तक अनेक लोगों का अंधकार दूर करने में सक्षम रहा, उसके पीछे बेसिकली जो फंडामेंटली जो उनके अपने एक्सपीरियंस हैं, उसके विषय में शायद आपको नहीं पता होगा। 3 बातें हैं जिनके कारण से भारत में ये इतनी बड़ी क्रांति आई, इतने दीपक जगे, इतने लोगों के अंधकार मिटे और बंधन से मुक्त हुए। केवल 3 बातों के कारण हुए, केवल 3 बातों के कारण। और 3 बातें ही बताऊंगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिम में धर्म क्यों खो गया या उसका जन्म ही नहीं हुआ वहां पर। उसके भी 3 कारण है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले भारत की उस अतीत के साथ उस ऋषियों के 3 मौलिक जो पिलर्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले ऋषि ने एक बात रखी है और बहुत अनुभव के बाद वो बात कही गई, और उसी की देन है कि आज भारत में धर्म जीवंत है। भले ही उसका विकास नहीं हुआ, लेकिन वो रहेगा। 5% आदमी आज भी भारत में ऐसे हैं कि जो उस अध्यात्म को, उस इनर बीइंग को, उस अस्तित्व को जानने में सक्षम है। उसमें से पहली जो बात है, मौलिक ऋषि ने कहा है कि जीवन में किसका मूल्य है, इस भौतिक पदार्थों का या आपके जीवन का। ये बात बहुत पहले उठाई गई। किसका अधिक मूल्य है, आपके जीवन का या भौतिक पदार्थों का? और आप यदि इस बात को अच्छी प्रकार से अनुभव करना चाहेंगे तो जीवन को आदर, जीवन के प्रति प्रेम, जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। केवल हम एक भौतिक पदार्थों का पोषण करने के लिए, उनकी गुलामी करने के लिए, उसके द्वारा जो पीड़ा, दुख और नरक पैदा हो रहा है,
उसको पोषण देने में तो हम 100% शक्ति लगा रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन के लिए क्या करते हो? आप अपनी अंतरात्मा के लिए क्या करते हो? आप अपनी आंतरिक प्रसन्नता और आनंद के लिए क्या करते हो? जब अध्यात्म की बात आती है तो वो पूरा आंतरिक जीवन जिसको हम अध्यात्म के नाम से कह रहे हैं, वो सब इस बात के प्रश्न उठाता है कि क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम ये कह सकते हो कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। अध्यात्म की हमारे सबके पास है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल भी नहीं। धर्म के विषय में आप जानते हो, लेकिन धर्म क्या है उसका नहीं पता। स्पिरिचुअलिटी क्या है उसके विषय में हम जानते हैं, लेकिन वस्तुतः वो मेरे जीवन का एक आंतरिक अनुभव है या नहीं है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि संपूर्ण जो विज्ञान है वो कल्पना पर आधारित है, और जो आपका योग है, स्पिरिचुअलिटी है, वो पूरा अनुभव के ऊपर आधारित है। तो अनुभव के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और साइंस की दृष्टि से उसमें एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना हम करते हैं और उसको पूरा भी नहीं कर पाते, उसके बाद फिर दूसरी कोई हाइपोथेसिस आ जाती है। लेकिन सत्य के साथ ऐसा नहीं, जीवन के साथ ऐसा नहीं, अध्यात्म के साथ ऐसा नहीं। उसके जो अपने आंतरिक अनुभव हैं वो प्राचीन काल में लाखों वर्ष पुराने, और आज भी वही उसके अनुभव हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो मौलिक है, सदा है और सदा रहेगा। बाकी चीजें आती हैं और चली जाती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। तो पहली बात ऋषि ने कहा, किसका मूल्य अधिक है, जीवन का किसका मूल्य अधिक है, जीवन का या भौतिक पदार्थों का। और ऋषि ने अनुभव किया और जाना कि जीवन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और एक बात आपको मैं बता देता हूं कि संसार में पाप नहीं, छोटे बड़े बहुत सारे पाप होंगे जिसको आप जानते, लेकिन ऋषि के द्वारा सबसे बड़ा जो महापाप है, एक ही पाप है, आप हो और आपको नहीं पता कि आप क्या हो। आप हो और आपको नहीं पता कि आप क्या हो। और ये बात आज से नहीं, करोड़ों वर्षों से मनुष्य के अस्तित्व में गूंज रही है। और यहां तक आज का जो आधुनिक साइंटिस्ट है जेसिका आइंस्टीन है, उसने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मुझे खेद है, इस बात की पीड़ा है, और जीवन को व्यर्थ मैंने गंवाया इस बात के लिए कि मैं बिना जाने हुए मर रहा हूं। साइंटिस्ट भी अनुभव करता है कि कुछ छूट गया है, कुछ जीवन में मौलिक था वो मेरे से दूर चला गया है, और एक एम्प्टीनेस, एक रिक्तता, एक खालीपन। आप कितने भी अमीर हो जाओ, कितने बड़े पद पर आप बैठ जाओ, लेकिन एक रिक्तता, एक खालीपन, एक पीड़ा कहीं ना कहीं किसी कोने में आपको बराबर इस बात का अनुभव कराएगी कि कितना भी बड़ा पद हो, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं, कोई तृप्ति नहीं। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो अपने कारण से महान हैं, अपने अनुभव के कारण महान हैं, अपने महान हैं, वो उनकी पहचान है। और एक दूसरे जो पद के कारण, धन के कारण, प्रतिष्ठा के कारण महान होने की कोशिश करते हैं, लेकिन पद हटते ही महानता समाप्त हो जाती है। जो धन है विसर्जित होते ही आपकी महानता छीन ली जाती है। जो धन है विसर्जित होते ही आपकी महानता छीन ली जाती है। तो जो उधार है वो वापस लौट जाता है। जो आपका अपना है वही आपके पास रहेगा। तो तीन बातें ध्यान, एक, जो आप हो सकते हो वो सदा रहोगे। दूसरा, जो आपकी संभावनाएं हैं आप हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। और तीसरा, जो आप कभी भी नहीं हो सकते हो। थोड़ा जटिल है। एक इनर बीइंग, जो आप थे और हो और रहोगे, उसे कुछ छीन नहीं सकता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये चीज महत्वपूर्ण है जो इस बात को समझते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है।
कि आत्मा है और पढ़ लिया और सुन लिया और उसके ऊपर विचार भी कर लिया, लेकिन अध्यात्म विचार भी कर लिया, लेकिन अध्यात्म 100% अनुभव मांगता है, कीमत मांगता है, रूपांतरण मांगता है। यदि वो रूपांतरण नहीं हुआ तो आत्मा के विषय में सुना बहुत, लेकिन जाना कुछ भी नहीं। तो संपूर्ण जो साइंस है वो जानकारी पर खड़ी है, और जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, वो जानने पर खड़ा है। और जानना ही मनुष्य को मुक्त करता है, जानकारी मनुष्य को कभी मुक्त नहीं करती। इसको मुक्त करता है, जानकारी मनुष्य को कभी मुक्त नहीं करती। इसलिए आज के युग में जानकारी आपके पास बहुत है, अथाह है जानकारी आपके पास, लेकिन जानने की जब बात आती है तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां एक नवजात शिशु होता है। एक अर्थ में मैं कहूं, आप में से केवल 2 तरह के आदमी दुनिया में हैं, एक छोटे बच्चे और एक बड़े बच्चे। आध्यात्मिक जीवन इस प्रकार से कहना चाहेगा कि कुछ छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं, और बड़े बच्चे छोटों को समझा देते हैं, एक विचारधारा उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगभग 350 सब्जेक्ट्स में पीएचडी कराई जाती है। आप जानते होंगे, बच्चे स्टडी करते हैं। जब कभी विज्ञान आरंभ हुआ था पश्चिम में, केवल एक सब्जेक्ट नेचर ऑफ साइंस, फिजिक्स उसके साथ आई, उसके साथ केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, पता नहीं उसमें एंटोमोलॉजी, 350 सब्जेक्ट्स हैं आज जिसके साथ पीएचडी की जाती है। आदमी की जिंदगी कितनी है बच्चों? कितनी सी जिंदगी है? कितनी पीएचडी कर लोगे आप? कितना भूसा अपने ब्रेन में भर लोगे? और उसका फिर आउटपुट भी क्या होने वाला है? लेकिन एक के जान लेने से सब जान लिया जाता है, एक के तृप्त होने से सब तृप्त हो जाता है, उसको खोज लेने से सब अंधकार मिट जाता है। और अध्यात्म यही एक मौलिक उसका सौंदर्य है कि वो सब कुछ आपको दे देता है जो आपको चाहिए। शांति चाहिए, सबको चाहिए, सौंदर्य चाहिए, सबको चाहिए। एक घटना में प्राय बताता रहता हूँ, वो आपके साथ समझ आ सकती है। ऐसा हुआ कि यूनान में, एक घटना में प्राय बताता रहता हूँ, वो आपके साथ समझ आ सकती है। ऐसा हुआ कि यूनान में एक, लेकिन बीमारी कुछ टस से मस नहीं हुई, और अंत में ये दिखाई दिया कि शायद इसी बीमारी के साथ संबंध है, लेकिन बीमारी कुछ टस से मस नहीं हुई, और अंत में ये दिखाई दिया कि शायद इसी बीमारी के साथ सम्राट मर जाएगा। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा उनकी आशा की किरण जगी कि एक सन्यासी उस शहर में आया और देखा लोगों ने, और निवेदन किया कि शायद इनके हाव भाव से, इनकी प्रतिभा से कुछ ऐसा हो सकता है चमत्कार कि बादशाह ठीक हो जाए। उन्होंने निवेदन किया, उसने स्वीकार किया, उसने कहा ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका उपचार मैं नहीं कर सकता हूँ, और साधारण बीमारी है और बहुत साधारण से इलाज से ठीक भी हो जाएगी। जब उनको देखा सम्राट को और वो खड़े हुए, उसने कहा कि बीमारी निश्चित रूप से अति साधारण है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन एक दवाई जो आपको खोजनी है वो आपको पहले करनी पड़ेगी। क्या? कि एक इस शहर में, इस देश में जहां तक भी आप जा सकते हो, ऐसे आदमी का कोट लाओ जो कोट भी हो और वो पीस ऑफ माइंड भी हो और शांत भी हो, अमीर हो, धनाढ्य हो और शांत भी हो, और वो कोट यदि सम्राट को पहना दिया जाए तो ये स्वस्थ हो जाएगा। और उनको लगा बड़ा आसान काम है ये, कोई बड़ी महंगी औषधि नहीं है, और हमारे शहर में बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन जिसके पास भी वो गए, मिले, बैठे और उनसे कहा कोट चाहिए सम्राट के लिए, कोट नहीं हम प्राण भी दे देंगे,
लेकिन दूसरी शर्त हम पूरी नहीं कर सकते, हम शांत नहीं है, हम आनंदित नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। कोर्ट आप ले जाओ और दिन छिपे तक, सूर्यास्त होने तक प्रयास करने के बाद भी एक आदमी ऐसा नहीं था कि जिसके पास कोर्ट है और पीस ऑफ माइंड भी है। और फिर जब वो निकलते थे, एक नदी के किनारे से देखा कि दूर से एक बांसुरी आ रही है, उसकी सुरीली आवाज आ रही है, संगीत आ रहा है, तो उसका पीछा करते हुए जब वो गए, धुंधल का था, अंधेरा था, और उन्होंने वो सुरीली आवाज और वो संगीत सुना, उनका मन शांत हो गया थोड़े समय के लिए। और उस युवक से कहा कि हम जिसकी खोज में थे वो मिल गया है, और आप अकेले व्यक्ति ऐसे हो जो नृत्य कर रहे हो और आनंदित दिखाई देते हो। उसने कहा शायद तुम्हें भ्रांति है, ये मेरा झोपड़ा है और आप दीपक जला करके देखो कि यहाँ है क्या। कोर्ट की तो बात दूर, वो नग्न होकर के नाच रहा था और बांसुरी बजा रहा था। उसने कहा शांति यहाँ है, आनंद यहाँ है, लेकिन कोर्ट नहीं है। ये संसार में विडंबना है। तो आप सबके पास कोर्ट है आज, इसमें कोई संदेह नहीं, माइंड नहीं है। तो ऋषि ने किसका मूल अधिक है, जीवन का या भौतिक पदार्थों का? जब उपभोग करने वाला वस्तुओं का, जब उपभोग करने वाला वस्तुओं का संसार में पदार्थों के नीचे दब करके मर जाता है, तो उससे अधिक दयनीय स्थिति और क्या होती है। तो मनुष्य प्राय कहते हैं कि जीवन दुख है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए, इस जीवन को दुख क्यों आया है उसका कारण भी आपको जानना चाहिए, और दुख की स्थिति को पैदा करने के कारण भी आप ही हो। दुख कहीं बाहर से नहीं आता। तो पहली बात ऋषि ने कही कि किसका मूल्य अधिक है। जिस दिन आपके जीवन में जीवन को मूल्य आप देंगे और सर्वोपरि रखेंगे और प्रथम रखेंगे, तब आप अध्यात्म के जीवन में पहला कदम रखेंगे। अभी तो जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, उसको बेचा जा रहा है बाजार में, अनेक अनेक प्रकार से बेचा जा रहा है, पैसे के लिए, पद के लिए, सम्मान के लिए बेचा जा रहा है, राजनीति के लिए, चंद कुछ पैसों के लिए जिंदगी बिक रही है, जिसको कोई मूल्य आपके पास नहीं है। जब मरेंगे तब पता चलेगा कि जीवन था। सेकंड थिंग, जो दूसरी बात है जो ऋषि ने कही है, दूसरी बात ऋषि ने कही है वो बहुत मौलिक है। इस बात की तो प्यास जग गई है कि जीवन का मूल्य है, लेकिन हु एम आई, कौन हूं, उसकी मुमुक्षा जगना, उसकी प्यास जगना, इस जीवन को जानने के लिए आपके प्राणों में अंदर एक अग्नि पैदा हो जाना, ये दूसरा कदम है। मुमुक्षा उसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, जिसको कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं। इसकी खोज करने के लिए आपके प्राणों में एक तेज, एक अग्नि, एक वैराग पैदा हो जाए कि जीवन इससे पहले कि नष्ट हो, मैं इस परम सत्य को जान लेना चाहता हूं। ये दूसरे नंबर की बात है। और तीसरी बात जो ऋषि ने कही है कि प्यास जग गई है, लेकिन बुझाएगा कौन, भूख लगी है, भोजन आएगा कहां से। और उसके लिए ऋषि कहता है तीसरी बात, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी अनुभवी और उस प्रकाश, उस आनंद को जानने वाला किसी अनुभवी ऋषि के द्वारा ये बात पूरी हो सकती है, उसकी खोज में जाओ। तो तीन प्यास जीवन के प्रति, जीवन क्या है उसको जानने के प्रति, और किसके द्वारा ये जीवन उस आनंद में, उस अध्यात्म में परिवर्तित होगा, उस महापुरुष की खोज। इन तीन बातों के कारण इस भारत का जो सबसे अतीत से लेकर के अब तक का अध्यात्म का इतना बड़ा जो मनुष्य के जीवन में विस्तार, अध्यात्म का इतना बड़ा जो मनुष्य के जीवन में विस्तार हुआ है, वो तीन बातों के कारण हुआ है। और तीन बातों के कारण मैं बता देता हूं कंपैरिजनली, पश्चिम में क्यों नहीं हो पाया। तीन बातों के कारण वहां से धर्म विदा हो गया
और साइंस विज्ञान का वहाँ जन्म हुआ। पहला आघात पश्चिम में तब लगा जब सबसे पहले गैलीलियो ने एक बात उठाई कि बाइबल में जो लिखा है झूठ है। मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ। पहले धारणा ये थी बाइबल में और धार्मिक लोगों के मन में कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटता है और का चक्कर काटता है। और पहली बार साइंस ने इतना बड़ा धक्का दिया है अध्यात्मों को वहाँ के धार्मिक जीवन को। और वे लोग सोचते थे हम इस उपग्रह पर जहाँ रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर जहाँ हम रह रहे हैं, हम महान हैं, श्रेष्ठ हैं, कि सूर्य भी हमारी पृथ्वी का चक्कर काटता है, परिक्रमा करता है। लेकिन गैलीलियो ने 1500 के आसपास जब ये बात सिद्ध कर दी तो वहां से संदेह पैदा हो गया। वहां से जो आध्यात्मिकता का जीवन जिसको समझते थे, लोगों में खलबली पैदा हो गई। इसका अर्थ है बाइबल झूठ है, इसका अर्थ हम अब तक जो मान रहे थे वो सब झूठ है। यद्यपि बड़ी पीड़ा दी गई गैलीलियो को, बहुत कुछ यातना सहनी पड़ी, लेकिन वो सत्य सिद्ध हुआ और पहला आघात लगा पश्चिम को और वहां विज्ञान ने जन्म लिया और अपने पैर नीचे गड़ाए। दूसरा आघात तब लगा जब डार्विन ने कहा कि मनुष्य बंदर से आया है। अब तक उनकी मान्यता थी कि हम ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर की संतानें हैं और पवित्र हैं, और कहां बंदर और कहां मनुष्य। इस बात को सुनने के बाद यूरोप में बहुत विरोध हुआ, लेकिन एक क्रांति भी आई और दूसरा आघात लगा वहां बाइबल को और वहां के तथाकथित धर्म को कि मनुष्य बंदर से आया है। कहां बंदर और कहां मनुष्य। लेकिन ये तो छोटी बात, यदि ये बात डार्विन ने भारत में कही हुई होती तो कहते कि बंदर तो छोड़ो, हम तो 84 लाख योनि से आए हैं। बंदर तो छोड़ो, अब 84 लाख योनि से आए। कोई विरोध नहीं था, कोई विरोध नहीं था। लेकिन वहां भारी विरोध हुआ कि हम ईश्वर पुत्र और कहां बंदर, और इस कारण से वहां अध्यात्म धीरे धीरे डूब गया। और तीसरी बात, फ्रायड, उसने जो थोड़ा बहुत काम बचा था वो भी समाप्त कर दिया। फ्रायड ने क्या कहा कि मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा एक ही बात हो सकती है कि छोटा दुख और बड़ा दुख, बस दुखी तो है ही, बड़े से बड़े दुख को कुछ छोटा करने की कोशिश की जा सकती है, बाकी दुख को नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि 7 करोड़ कोशिकाएं हैं जो मनुष्य की सेक्स से, वासना से आई हैं और पूरे शरीर में, मस्तिष्क में फैली हुई हैं। मनुष्य वासना से मुक्त कैसे हो सकता है? 7 करोड़ इस प्रकार के सेनापति खड़े हैं, उससे तुम्हारा किला घिरा हुआ है, उसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते। मनुष्य वासना से, इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता। फिर लोगों ने समर्पण कर दिया, जब दुख में ही रहना है और दुख ही हमारी नियति है तो ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मजा करो, छोड़ो। कोई सत्य नहीं है, कोई भगवान नहीं, कोई अध्यात्म नहीं है। और सारा पश्चिम फिर धन, स्त्री और विलासिता में डूब गया, जिसका दुष्परिणाम पूरे संसार को भोगना पड़ रहा है। इन 3 बातों के कारण जो हवा वहां से चल करके आई है, आज आप भी 3W के शिकार हो, किसी ना किसी रूप में। 3W, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। स्त्री, शराब और पैसा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जिसको मैंने कहा भूसा दिमाग में घुसाया जा रहा है, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने भी खूब रट्टे लगाए हैं, लेकिन आज मेरे लिए किसी काम का ना था
और ना है। इमर्सन ने कहा शिक्षा का अर्थ है जिसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के जाके भूल जाना ही पड़ता है। फिर अर्थ क्या हुआ? वो सीखो जो जीवन में काम आए, वो सीखो जो जीवन में काम आए, वो सीखो जो जीवन में रूपांतरण करे, वो सीखो जो जीवन में पीस ऑफ माइंड लाए, वो सीखो जो जीवन में क्रांति लाए। ना स्वास्थ्य रहा, ना शांति रही, ना प्रेम रहा, फिर हम करेंगे क्या इसका? इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर लिए, इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी कर ली, करूंगा क्या? पहले आदमी आना चाहिए, आदमियत आनी चाहिए, एक रूपांतरण आना चाहिए, एक जीने का आना चाहिए। और मैं साइंस के विरोध में नहीं, इसके बाद पावर आनी चाहिए। पहले पीस ऑफ माइंड आए, पहले शांति आए, एक गवर्निंग पावर आए। इसके बाद दुनिया की कोई भी चीज आपके हाथ में दे दी जाए वो सब अमृत है। साइंस जहर नहीं है। हमारे हाथ में जो आ गया है नासमझ आदमी के आने के बाद, यदि अमृत भी नासमझ आदमी के हाथ में दे दो तो जहर बना लेगा। यही चीज समझदार आदमी के हाथ में हो तो हिरोशिमा के ऊपर एटम बम नहीं डालेगा ना, वर्ल्ड वॉर नहीं कराएगा ना, हर घर में युद्ध नहीं होगा ना। यदि हर घर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जी रहा है और जीवन को जी रहा है और जीने का ढंग जानता है, तो हॉस्पिटल क्यों खुलेंगे, युद्ध क्यों होंगे, तलाक क्यों होंगे, संसार में इतनी बीमारियां क्यों आएंगी और पागल खाने। मैं उल्लेख तो नहीं करना चाहता था, लेकिन पीछे मेरी भेंट हुई राष्ट्रपति जी से। समय तो वहां कम था, लेकिन मैंने एक बात उठाई, आदिवासी जो रह रहे हैं और आप उन्हीं से आए हो, और यहाँ का जो आदमी रह रहा है सब जिसको कहते हैं और वेल एजुकेटेड कहते हैं, क्या कुछ अंतर देखते हो? वहां कोई पागलखाना नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई मर्डर नहीं होता है, और वे लोग आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। और पिछले 200 वर्षों में आप लोगों ने शिक्षा का इतना विस्तार किया है, अमेरिका ने और दूसरे पश्चिमी देशों ने, और सब जितने भी दार्शनिक थे सबकी यह मान्यता थी कि जिस दिन पूरा संसार वेल एजुकेटेड हो जाएगा, संसार पर, पृथ्वी पर स्वर्ग छा जाएगा, मनुष्य सफल हो जाएगा। लेकिन आज चारों तरफ शिक्षा है लेकिन मनुष्य नहीं है, शिक्षा है लेकिन प्रेम नहीं है, शिक्षा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा है लेकिन सुरक्षा नहीं है। तो क्या आपको बच्चों को भी संदेह नहीं होता? ये जो कुछ हमारे हाथ में आ रहा है, इससे हमें सिवाय एक पैसे के और कुर्सी के कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, अध्यात्म का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, मुझे एक आदमी होने की आवश्यकता है, मुझे अपने केंद्र से जुड़ने की आवश्यकता है। क्या है अंदर छपा हुआ रहस्य, उसको जानने की आवश्यकता है, और तब मैं संसार में एक सम्राट की तरह से विचर सकता हूं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो जानते हैं मुझे कहां रुकना है, लेकिन इस शिक्षा में पढ़ने वाला रहने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि मुझे कहां रुकना है। ये बात थोड़ा समझने, भोजन करते हो तो आपको पता चलता है कि हमें कहां रुकना है। आप भूख से नहीं खा रहे हो, आप स्वाद से खा रहे हो। स्वाद नहीं बताएगा कि कहां रुकना है, शरीर बताएगा कि मुझे कहां रुकना है। तो एक तो है कि भोजन विलासिता बन जाए और भोजन आपके लिए फूड पॉइजनिंग बन करके बीमार कर दे, और एक है कि भोजन करने का एक ढंग है, कला है, और कितना देखना है और कब देखना है
ये आपको कभी भी पता नहीं चलता। और क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है इसका भी तुम्हें कभी पता नहीं चलता। और किसकी संगत करनी है और किसकी नहीं करनी इसका भी कभी पता नहीं चलता। तो जो व्यक्ति अपने केंद्र से जुड़ा हुआ है, जो विवेक से जुड़ा हुआ है, जिसके पास पीस ऑफ माइंड है, जिसके पास ध्यान की कला है, संसार में प्रत्येक चीज उसके नियंत्रण में होती है और वो उनका उपयोग करता है। तो दूसरा एक वाक्य कहूं जिसको विज्ञान ने तो नहीं समझा लेकिन अध्यात्म समझाता है कि संसार की वस्तु का उपयोग करो और पूरी मानवता को प्रेम करो, तो संतुलन बनता है। लेकिन समय समाप्त हुआ। हाँ, कोई बात नहीं। तो पूरी मानवता को प्रेम करो, लेकिन प्रेम लाओगे कहां? मनुष्य को अपने से प्रेम नहीं है तो दूसरों को प्रेम करेगा कैसे? और आपकी जेब में 2 रुपए नहीं तो डोनेशन दोगे कहां से? कहां से लाओगे प्रेम? पहले प्रेम पैदा करना पड़ता है और फिर बढ़ता है। लेकिन प्रेम की जहां तक बात है, आप प्रेम कब हो और किसको करते हो? इस दुनिया में इतनी चर्चा चलती है, लेकिन प्रेम कहते हैं किसी के भी पास नहीं है। कारण क्या है? हर व्यक्ति मांगता है, हर पत्नी मांगती है, पति मांगता है, बेटा मांगता है, पिता मांगता है, मित्र मांगता है, हर कोई प्रेम मांगता है। लेकिन ये बात ही गलत है। ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाएगा कि आप प्रेम को दूसरों से ले लो। प्रेम की एक ही परिभाषा है, प्रेम दो, प्रेम बांटो और अनकंडीशनल दो और बिना शर्त दो। और जो बांट सकते हो वो बांटो, लेकिन वो तब जब आपके पास ध्यान होगा, जब मेडिटेशन होगा, जब स्पिरिचुअलिटी होगी, तब आप बांट सकते हो। अभी तो तुम्हारे हाथ में भिक्षा पात्र है, बांटोगे क्या? भिक्षा ही बटेगी। दुखी आदमी हो तो दुखी बटेगा और बीमार है तो बीमारी बटेगी। तो पहले पैदा करो, पहले अचीव करो, पहले रूपांतरण करो और फिर दुनिया में वो बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए अध्यात्म साधारण बात नहीं है, जीवन की एक अंतिम उपलब्धि है। और इससे पहले कि मृत्यु आए और तुम संसार से चले जाओ बिना जाने हुए, ये जीवन का बड़ा घाटा होगा। इससे बड़ा घाटा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सुझाव दूंगा, प्रेरणा दूंगा, आपके जीवन में तब आएगा, तभी एक रूपांतरण आएगा, तभी आपके सौभाग्य के द्वार खुलेंगे कि संसार की खोज के साथ साथ अपनी खोज को भी जोड़ दो। आप अनखोजे ना रह जाओ। अपने साथ, अपने जीवन के साथ ये भी एक प्रेम करो और न्याय करो कि हम बिना जाने हुए संसार से नहीं जाएंगे। और मुश्किल नहीं है, आप 2-2 घंटे भी सुबह शाम निकालने लगो और अपने अंदर झांकने की कला सीख लो और जो भी बीमारियां उनको देखना सीख लो, तो सब रूपांतरित हो जाएगा। और तुम बुरे नहीं हो, बहुत अच्छे हो और बहुत बड़ी संभावना लेकर के यहाँ आए हो। लेकिन दुर्भाग्य है और विडंबना है, तुम्हारे लिए यहाँ औषध की व्यवस्था ना हो तो बीमारी में मरना पड़ता है। सब जानना चाहते हो, लेकिन यहाँ जानने वालों की कमी है। और जब तक जानने वाले नहीं होंगे तो यहाँ अंधकार में ही जीना पड़ता है। यदि मैं कहूं कि चिकित्सक हूं और मैं स्वयं बीमारी से ग्रसित हूं, मेरे से कौन औषधि लेगा? और मैं स्वयं कंगला हूं और मेरे पास 2 पैसे नहीं, मेरे से धन की कौन आशा रखेगा? पृथ्वी पर जीवन तो हो, तब प्रकाश फैलता है। तो आप प्रयास करें और एक लंगड़ी दौड़ ना दौड़ें, एक पैर पर ना खड़े रहें। आपके पास एक संतुलन होना चाहिए। वो संतुलन है, अंदर भी देखें क्या है और बाहर भी देखें क्या करना है। समझ रहे हो मेरी बात? अंदर देखें क्या है और फिर पता चलेगा कि बाहर क्या करना है। फिर आपके जीवन में संतुलन होगा
और प्रेम होगा, फिर आप जीवन को कम से कम में भी और झोपड़े में रह करके भी और साधारण वस्त्रों में भी और साधारण भोजन करके भी आनंद से गीत गा सकते हो, उत्सव मना सकते हो और नाच सकते हो। आनंद के लिए पैसे की जरूरत नहीं, आनंद के लिए बड़े मकान की जरूरत नहीं, आनंद के लिए आपका आनंदित होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपको जितना भी सुने उतना कम ही लगता है, परंतु समय की सीमितता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आंतरिक खोज के लिए प्रयासरत रहेंगे। अभी 10 मिनट के लिए जलपान की व्यवस्था है, उसके बाद पुनः हम दूसरे सेशन के लिए यहाँ पे वापस आएंगे।